So, hi everyone. The topic of today's discussion is, should media, or I would say it out, media freedom, should there be a limit to it? I'm popping this in the chat box also. It's a media freedom. And I'm asking you that, should there be a limit to it? Now, that's the topic of today's discussion. The similar way you have to tell it out in the terms of introduction. That is, good morning, everyone. The topic of today's discussion is a question. Now, it's a question which is being asked in front of you. So you can take it out as in this way. So that the name of the topic is media freedom. Should there be a limit for it or not? So according to my opinion, yes, there should be. According to your opinion, no, there should not be. Or yes, if I'll say it out, there's a right to speech, but yes, there is not right to misinformation. Right? So this thing you should remember. If now Article 19A or Article 19, it speaks something that, yeah, you should have a right to speech, but it never says that you have the right to misinform someone or misguide someone, right? So whatever you have, any thoughts from your side, and then you have to open the house for discussion. Now, multiple problems have taken place in India. बहुत issues आए हैं कुछ. I would give you one example. Terrorism से related भी बहुत issues आए हैं. मीडिया की वजह से बहुत चीजें इंसाइट भी हुई हैं, कम भी हुई हैं. I was watching Mumbai Diaries like 2-3 days back, right? And I had like this thing, if anyone else also watches it out, you will feel कि आधी problem media की वजह से हो गई. If the girl was not inside, she would not have circulated the news. तो क्या होगा? शायद हॉस्पिटल का पता ना चलता, कहाँ पे वो बैठे हैं नहीं पता चलता, and the attack would not have been there. So you understand? Now this is something, but yes, there is a transparency also because of media. So it's always a both sides. Like if I say a coin has two sides, similarly, it has positive, it has negatives, whatever it goes. Now the take is on you, like whatever you want to think about. I want the best of content today. It's a very interesting topic. I have given you started from Mumbai Diaries. I want you to give me good content. कुछ न्यूज का दो, कोई अभी रिसेंट इंफॉर्मेशन का दो, बहुत चीजें आपके पास बताने को. Now this explores आप कितने लेवल तक आप उसको सोच सकते हो. Clear guys? ठीक है? चलो, all the best. 3 minutes timer starts now. Who wants to introduce? Please tell me your names. Unmute करके बोलो भाई मुझे नाम जल्दी से. I'm Yogesh. I'm Akash. Yogesh and Akash. And who wants to conclude? चलो योगेश और आकाश में से एक जना conclude कर दो. Yes, ma'am, I conclude. ठीक है, then Akash for introduction, Yogesh for conclusion. Is it fine? Chalo, good guys. 15 minutes timer will be there. Give me the best of content, guys. All the best. Jot down your pointers. Okay, guys, so the time is up. I think we can start with a GD now. Okay, so yes, 15 minutes timer starts now. Go ahead with the introduction, Akash. Am I audible, ma'am? Yes, please go ahead. So, good evening, everyone. This is Akash Kumar, and I would like to take the privilege of getting started about today's discussion. The topic of today's discussion is media freedom. Should there be a limit to it or not? So, my personal opinion is, yes, there should be the freedom to media, but definitely to a certain limit. Because if the limit is gone, there is a very high chance to misguidance, as well as some of the media houses are somewhat politically oriented toward a specific organization or a specific party. Like one example I want to give you, like in the recent election, we have seen the exit polls. जैसा exit polls था, like they were showing the how much the one certain party is reaching or crossing the 400, but in the actual result it was not.
So it is a kind of misguidance that is provided by media house to the general audience. So it should be stopped. And it is said that it is the fourth pillar of our constitution, right? So I think अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा फोर्थ पिलर जिसपे आधा से ज्यादा चीज डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन का सोर्स मीडिया ही होता है, और वही अगर इतना मिसगाइडेड या फिर पॉलिटिकली ओरिएंटेड रहेगा तो हमारे पास तक राइट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगा. And the another big example that ma'am has also told, like the like due to the lack of freedom, जब टेररिज्म अटैक होती है तो जो उनका कंट्रोलर्स होता है उनके पास जो मेन इंफॉर्मेशन होता है वो हमारा मीडिया का जो स्क्रीन वगैरह देख करके वो अपने टेररिस्ट को गाइड कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे सोल्जर है, यहाँ पे सोल्जर नहीं है, यहाँ पे सोल्जर्स हैं, ऐसा. So this is just because the lack of control over the media. वो बस सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं फ्रीडम के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं. So definitely I would say yeah, there should be freedom, but we have to stop it to a certain limit. So I hope you guys have also very great point to discuss. So I open the house for the discussion to all of you, and let's come with a very healthy solution of it. Thank you guys. I यस want to आकाश, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. जैसे कि आपने अभी एग्जिट पोल का बताया, तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि मीडिया का फ्रीडम होना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ स्तंभ है. एग्जैक्टली. बट साथ ही साथ उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, क्योंकि गांव में जो होता है पब्लिक मोस्टली न्यूज ही देखते हैं और वो उसी से अपना Definitely. माइंडसेट क्रिएट करते हैं. तो अभी जैसे हम लोग देखे राम मंदिर वाला इश्यू इतना बड़ा था, तो उसको मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से उसके सिर्फ पॉजिटिव्स दिखाए, जबकि वहाँ के लोकल लोगों के जो घर Reality तोड़े was गए, yeah. वहाँ के घर तोड़े गए, वहाँ के लोगों Yeah. को वहाँ से हटाया गया, वहाँ के काम करने वाले लोगों को, वहाँ के जो रूरल लोग थे उनको हटाया गया, उसको गवर्नमेंट मीडिया ने बिल्कुल भी नहीं दिखाया. नतीजा क्या हुआ, क्योंकि वहाँ का इलेक्शन ही हार गई उसी की Definitely, वजह से. साथ ही definitely. साथ उसका अगर मीडिया का भी यस यस हाँ, I जैसा कि ये हमने सोचा था कि बीजेपी वहां से बहुत ज्यादा सीटें अटेंड करेगी, वो हो गया एकदम रिवर्स वहां पर. I agree with the Akash and Kuldeep that the media freedom should be necessary for the our country, because it impacts on the politics, it impacts on the election, it impacts on the rural development. If the media is free, if the media is transparent, only then we can get the right information, and we can see the both side of every aspect. Nowadays, what happened? The media is showing only the one side of every information. And also the media is the big companies are using the media as their tool to promote them. Like recently we have seen the Ambani's wedding in the on the every news. At the same time, our military is facing the issues in the Jammu and Kashmir, but they are not showing these issues that directly impact to our nation, but they are showing the personal achievement and the personal promotions of some companies. So it should not be there. Uh, the media should be transparent, because it has impacted on the every aspect of our country in our country growth. So I want to add this point. Also, to add to Yogesh point, media also sometimes tries to divert people attentions from the real issues of our countries, like unemployment or raising poverty. This issue should be addressed also. And Yes. also, I want to give an example, like in case of 26/11, that Taj Hotel attack, there was live media coverage of the entire that army planning and what inside that took place. So that sensitive information should not be leaked out in the public domain, because that awares the terrorist inside that hotel place. So I think there should be some regulation in such cases. Yes. Definitely, आपने Aditya. आपने बिल्कुल सही कहा. आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन Like last आप year, सब if लोगों you have की heard बातों the case of Manipur, right? उस समय मणिपुर का क्या हालात था, वो उस समय लाइक फॉर द 2 months कंटिन्यू जो मणिपुर में जो हमारा केस चल रहा था, उसको छोड़ के लाइक देयर वाज सम रबिश न्यूज़ वर गोइंग ऑन दैट some lady from Pakistan came to सीमा हैदर. India for love cases. हाँ, सीमा हैदर, right? सीमा हैदर. Yes, yes. Like all these stuff were going on for 15 to 20 days continuously.
but at the same time, like in the state of Manipur, all the rights, all the violence, all the there are some, I think there are some rights between two cookies, and there is also some community, and there यदि is मैं बात having करूँ mass तो mass यदि मैं बात destruction. करूँ कि भारतीय संविधान की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास एक फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। उसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 12 से 35 है। उसमें हमारे पास जो आर्टिकल नंबर 19 है उसमें लिखा गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो हमारी मीडिया काम करती है वो भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 पे काम करती है, जो कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो भारतीय मीडिया या फिर कोई भी मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बिकॉज यदि मीडिया स्वतंत्र नहीं है, मीडिया पर किसी का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो हमें सच्ची घटनाएं नहीं मिलेंगी। जिस तरह से यदि हम आज की बात जाने भारत की, तो भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो एक होता है उसमें भारत का 180 कंट्रीज में 160वां स्थान है, जो यह Exactly. बताता है कि भारतीय मीडिया एकदम, मैं कोई बुराई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसे हम लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नाम से जानते हैं। उसमें 180 कंट्रीज को नामित किया गया, उसमें भारत का स्थान 160 है, जिससे यह मालूम चलता है कि भारतीय मीडिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसलिए हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हमें एकदम स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट न्यूज दिखाई जाए। जिस तरह यदि हमें बात करें कि अभी हमारे पास इजराइल हमास वार चल रहा है, चाहे हमारे पास यूक्रेन रशिया वार चल रहा है, चाहे हमारे जवान जम्मू कश्मीर में कितने शहीद हो रहे हैं, हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनकी नहीं है। बट मैं ये भी नहीं कहता कि हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनकी चाहिए। हमें उस मीडिया की ट्रांसपेरेंसी की जरूरत नहीं है जिससे हमें हमारे मन में अशांति फैले, पर लेकिन हमको उस मीडिया की आवश्यकता है जिससे हमारे माइंड में, जैसे हमारे जवान जम्मू कश्मीर में कितने शहीद हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, कितना हमारा बजट स्टेशन है, उसकी हमको करेक्ट न्यूज चाहिए, ताकि हम अपने जो जैसे कि हमारे जवान जम्मू कश्मीर शहीद हो रहे हैं, यदि हमको उनका पता चलेगा तब हमको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाएंगे। इसलिए मीडिया का ट्रांसपेरेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हम बात करें नॉर्वे कंट्री की, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उसका पहला स्थान है, यूएसए का 10वां स्थान है, जो यह बताता है कि वहाँ कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है मीडिया में। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा, कुछ बातें ऐसी हैं जिसको छुपाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको छुपाना बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिस तरह हमारे पास कोविड-19 के समय में पीएम केयर्स फंड के नाम से एक फंड जारी हुआ था, प्रधानमंत्री कोविड पीएम केयर्स फंड के नाम से था, लेकिन उसमें जो भी फंडिंग आई उसका कितनी फंडिंग की ये आज तक बताया गया। तो इसमें मैं मीडिया को हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में कितने लोगों ने कितना पैसा डोनेट किया है इन द पीएम केयर्स फंड एट दैट टाइम। और भी कई सारे तथ्य Yes. ऐसे हैं जिसमें हमें ये लगता है कि मीडिया का फ्रीडम होना काफी ज्यादा आवश्यक है। यस Friends- शशांक, मुझे लगता है कि मीडिया को क्या है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट में, मतलब गवर्नमेंट जो अच्छा काम करे वो तो ठीक है, बट कोशिश करना चाहिए वो अपोजिशन और हाँ। पब्लिक के साथ खड़ी रहे, ना कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बहुत सारे उनके साथ लोग खड़े रहते हैं, वो अपने बहुत सारे कंपनीज को रखते हैं, बट पब्लिक को, जो नॉर्मल पब्लिक होती है उसके साथ में कोई नहीं होता है। तो मीडिया का काम होता है कि पब्लिक के मुद्दों को उठाए, जैसे कि अभी किसान आंदोलन हो रहा था जी। और स्टूडेंट्स वगैरह जो अपना जी। इशू क्रिएट कर रहे थे, इवन ये हम जैसा लोगों अभी की आपने देखा होगा, एमटेक कंप्लीट So कर लेंगे friends, जी। we Yeah, all अभी जैसा we all वो are क्या है saying कि that एग्जाम media था, is not अभी working जैसे freely. So what we can do for अभी making जैसे media नीट free? एग्जाम था, नीट एग्जाम में जितने भी हमारे धांधली हुई है, नीट एग्जाम के बारे में आपने सबने सुना होगा। नीट एग्जाम में इतनी धांधली हुई है, तो यदि हम मान लीजिए हमने एग्जाम दिया होता नीट का और हमारे साथ यदि ऐसा होता, तो हम अपनी जो गुहार है किसके पास लेकर जाते? हम मीडिया के पास जाएंगे। इफ मीडिया इज आल्सो नॉट लिसनिंग टू अस, देन हु इज फॉर अस? हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कोई नहीं। यदि मीडिया हमारे साथ नहीं है तो नीट हम जैसे लोगों के एग्जाम साथ वही एमटेक की फीस भी हाइक जी। हुई थी उस टाइम, जो है स्टूडेंट्स ने बहुत सारी आवाज उठाई थी, बट क्या हुआ, मीडिया ने उस चीज को बहुत उस मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोगों को खुद ही इवन जंतर मंतर पे जाके धरना देना पड़ा। तो ये स्टूडेंट के लिए हमारे कंट्री में बहुत मतलब बुरी बात है कि हम पढ़ाई भी करें फिर धरना भी दें। तो इवन मीडिया का ये सपोर्ट होना चाहिए कि हमारे इश्यूज को उठाए, जिससे कि हम अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकें। और यस तो अगर मीडिया अच्छे से नहीं कर रही काम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि I मीडिया think अच्छे से काम करे? I think the I there think should there are also online channels, online news portals. So we should follow that. They are working very hard to bring out the correct news, and they are also fact जैसे हम checking लोग the ट्विटर false में news. जैसे हम लोग मुझे ट्विटर में कभी कभी क्या आता है कि कंपेन लगाते हैं ना, कि जैसे हम लोग कुछ बातें कहनी किसी मिनिस्टर तक, हमें कोई बात पहुंचानी, तो हम ट्विटर का माध्यम लेते हैं, यूट्यूब का माध्यम लेते हैं, सोशल मीडिया का माध्यम लेते हैं, ताकि हम अपनी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं यह भी कहना चाहूंगा, मीडिया बुरी भी थोड़ी कुछ हद तक बुरी है, लेकिन बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं
मीडिया के, हमें ये सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि इंडियन मीडिया इज बैड एंड सम अदर मीडिया इज गुड. नो, देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एस्पेक्ट ऑफ आवर मीडिया. So that's why we have to praise our media as well as there is some limitations. We have to tackle it down. Recently, I read a news in which it is telling about that the government of India is now are making a law in which they are going to control all the non-professional media like YouTube channels and all. They are going to control them also. So I think at this Yes. time the opposition's party should come together and there should be law in which there will be control on media both by the opposition and the ruling party, so that there will be they will show the both aspect of every news. So I think this And nowadays what I am seeing that on YouTube that some channels are showing that like Pakistan mein dhamaka ho gaya, like that some news. So this is lie. After like when we open that news, then we see like some other thing is going there. So in the recent election, we have seen that the some new channels like Dhruv Rathi new channels and some more new channel has done a very good work to show the Definitely. work of work of government in every side. So now what impact that have created on the basis of that, the now government is trying to control them also. So it is not right, I think. Also, to add to Definitely, like this point, there are when some the channels on electoral YouTube bond which could scam be the happened, it was alternative the for the online media news portals channels. which came to front and bring this issue forward of the electoral bond scam. मैं ये And कहना later, चाहूंगा कि Supreme Court मीडिया को discontinued it. हमारे देश के बारे में जो भी अच्छी चीजें हो रही है वो भी दिखाना चाहिए, जो खराब चीजें हो रही है उसको भी दिखाना चाहिए, ताकि पब्लिक अवेयर हो सके कि हमारे पूरे भारत में, हमारे पूरे कंट्री में हो क्या रहा है. जिस तरह इसरो ने, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर लेना चाहूंगा कि चांद्रयान-3 मिशन जब लॉन्च किया था तो पूरे मीडिया ने उसको दिखाया. जब हमने मार्स मिशन सक्सेसफुली अचीव किया था उसको उसने भी मीडिया ने दिखाया, तभी तो हम जान पाए. मान लीजिए हम अपने गाँव में बैठे हुए हैं तो हमें क्या मालूम कि इसरो के अचीवमेंट क्या है, क्या रिसेंटली एडवांसमेंट हो रहे टेक्नोलॉजी में, क्या साइंस हो रहे हैं. वी आर ऑल नो अबाउट द हेल्प ऑफ मीडिया, विद द हेल्प ऑफ मीडिया ओनली. and मीडिया current कुछ in current situation, Olympic Like is also Sasank going sir, on. this is the point now. Like they are only showing the all the positive side of the government. Like ISRO is doing this. Our India is our like cricket team is winning the World Cup. Our Modi is making the Ram Mandir and all. They are only showing the positive insight of the government only. But what the other aspect of the coin? Like उनका जो ऐसे बहुत से काम है जो गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर, वही तो नहीं दिखा रहे. Like here we are discussing that only. That's why वो सिर्फ that's एक why ही we चीज को have दिखा 150 के. ranking ना. That's why we have और 160 ranking out of 180 countries. साथ ही साथ Definitely, मुझे ये भी ध्यान definitely. रखना चाहिए कि मीडिया को ज्यादातर यहाँ के रूरल एरिया में जाके काम करना चाहिए कि वहाँ के स्कूल कैसा है, वहाँ की पढ़ाई कैसी चल रही, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ के गांव का विकास हो रहा है या नहीं. बार सिर्फ ऑफिस से मीडिया नहीं चलता कि ऑफिस में बैठ के अच्छी अच्छी चीजें दिखा दे, क्योंकि जब तक हमारा रूरल ग्रामीण एरिया नहीं विकसित होगा तब तक हम ओवरऑल कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते हैं. But जैसे मैं Definitely, also एक depends definitely on Kudir what sir, people मेरे want पिताजी to watch, किसान है. right? It जैसे all मेरे depends like on पिताजी जब भी किसान है, TRP. हमारे जब भी You कोई will नया show what पॉलिसी the लागू people want होता to है see. वो दिखाते हैं कि ये पॉलिसी हम्म. लागू हुआ है, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने ये किया, बहुत अच्छी बात है, ये सब लागू किए. बट एक्चुअली व्हाट इफ उनका जो प्रैक्टिकलिटी है, उनका जो ग्राउंड लेवल पे उनका रियलिटी है, उनको वो दिखाना चाहिए कि हाँ लाइक ग्राउंड लेवल पे वो जो इशू है वो रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, वो जो चीज लागू हुआ है ग्राउंड लेवल पे आ रही है कि नहीं आ रही है. वो बस जब लागू होता है तो दिखा देते हैं हाँ गवर्नमेंट इज एग्जैक्टली डूइंग दिस. मुझे लगता है इस चीज को पब्लिक ने बहुत जल्दी मतलब चीजों को देख लिया है, इसीलिए कई बार हमने देखा है कि चाहे हमारे मीडिया के कोई भी जैसे अंजना ओम कश्यप, कई बार देखा उनको रिपोर्टिंग करते हुए पूरे पब्लिक उनका अपोज कर रही, गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक मोदी मीडिया, इस डेफिनेटली टाइप के नारों से. डेफिनेटली सर. और वो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि ये हमारी ज्यादा Definitely, सही sir. न्यूज Like, होगी. I think we like should not say there मोदी are मीडिया, some गोदी case मीडिया. We study should say कोई भी case मीडिया हो. study channels. चाहे आज मोदी जी की सरकार है तो हम मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कह रहे हैं, कल किसी और की सरकार हो तब भी मोदी मीडिया की सिचुएशन तो हमेशा से रहती थी. सो आई डोंट थिंक सो कि हमें मोदी मीडिया एंड गोदी मीडिया कहना चाहिए, बिकॉज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आज बीजेपी की सरकार है, हम गोदी मीडिया मोदी मीडिया कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी तो यही सिचुएशन थी. तो ऐसा तो था नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट के पहले हमारी रैंकिंग जो है 180 कंट्री, जो हमारे आज 160 रैंकिंग है, पहले हमारी रैंकिंग 20 थी, ऐसा भी नहीं है.
So we should not say that this is the Godi media, Modi media. और भी हमें ऐसे ये कुछ कहना है चैनल है कि जो कि government- हमेशा गवर्नमेंट को अपोजिट में ही दिखाते रहते हैं. हाँ, I think दैट इज uh, आल्सो नॉट ओके. नो. हाँ I think एग्जैक्टली जैसे Mr. हमारे I रवीश think, सर थे, I रवीश think कुमार जी थे, उन्होंने मीडिया छोड़ दिया, उनको वहां इंडिया टुडे से निकाल दिया गया. रवीश जी थे, वो ट्रांसपेरेंट न्यूज एकदम करते थे, दैट्स व्हाई उनको उनका पनिशमेंट मिला. सो वी पर शुड वी शुड हैव सम एंकर्स व्हिच शो ट्रांसपेरेंट न्यूज. I अभी think कल की मैं लेटेस्ट न्यूज बताऊं तो जो अभी दिल्ली में जैसे जो 3 बच्चों की डेथ हुई है ऐसे बाढ़ की वजह से, जो कोचिंग में वो बाढ़ का पानी घुस गया और उसमें हाँ, 2 यस, दिल्ली स्टूडेंट्स में, और दिल्ली कोचिंग सेंटर, दिल्ली एक आई है इसमें. एक स्टूडेंट 2 फीमेल स्टूडेंट और एक मेल दिल्ली और स्टूडेंट्स की उसकी वजह से डेथ हो गई। तो उसको कल जो है मैं पहली बार मतलब इतना अच्छा देखा कि मीडिया इतनी अच्छे से उसको हाँ, दिखा रही थी कि किस कंडीशन में बच्चे रह रहे हैं। तो इस टाइप की न्यूज हाँ, दिखाना ज्यादा जरूरी है, जिससे कि क्या होगा कि जो बीच के ब्रोकर्स लोग हैं हाँ, वो लोग दिस पैसा काइंड ऑफ बच्चों से न्यूज कैसे वेरी खा यूजफुल रहे टू अस. हैं हाँ, और बच्चे किस किस हाँ, तरीके हाँ, से रह रहे हैं, वहाँ का इससे, नगर पालिका कैसा हाँ, काम कर रहा है कि मकड़ी वहाँ की का तरह एनवायरनमेंट कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी सही बात. वायर कैसे लगे हुए हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कितनी लोगों की जान जा सकती है और ये Yes, yes. पानी लग कैसे रहा। I am तो fully कल agree मुझे with ये you. Like पर्सनली न्यूज देख के definitely मुझे बहुत कुलदीप अच्छा sir, लगा। I am लेकिन fully agree with sir, you. also to ये add to मीडिया Kuldeep's ने agree point, with you, but media मैं is आपको also एक point showing add the करना चाहता हूँ. recent railway Like sir, accidents what are ये they are सब happening. They are also covering all the railway accidents and they're asking questions from the Yes. government that it should improve. Facilities for the अच्छा, ये देखिए, commuters should improve. like I think Aditya जैसे sir, आपने बहुत I ही अच्छा completely एग्जाम्पल दिया agree with रेलवे you, एक्सीडेंट but का, तो like मैं sir, बताना हमें चाहूंगा कि ये भी हमें ध्यान जब रखना बताया गया चाहिए था कि कवच कि वो सिस्टम चीज रेलवे जो में बहुत दिखा पहले रहे ही हैं employ कर दिया गया, क्या जबकि कवच सिस्टम अभी तक हमारे रेलवेज में अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. जबकि हमको पहले ये बताया गया था कि कवच सिस्टम आ गया है. यदि कवच सिस्टम आ गया होता तो रेलवे एक्सीडेंट तो क्यों रहे? इसका मतलब है कि हमारे मीडिया ने हमको ट्रांसपेरेंट न्यूज दिया कि कवच सिस्टम अभी तक नहीं है. That's why और सबसे एक फनी न्यूज सर ये न्यूज दिखाने के लिए क्या कोई एक्सीडेंट का होना या फिर 3 बच्चों का डेथ का होना जरूरी था? अगर वो मीडिया इतने ही ट्रांसपेरेंट थे तो उनको ये न्यूज जब रियल में जब चीज खराब थी उनको पहले दिखाना चाहिए था कि लाइक दिस वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जैक्टली गवर्नमेंट, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा वैसा केसेस हो सकती है. लेकिन व्हाट इज हैपनिंग लाइक उनको एक न्यूज दिखाने के लिए क्या हम लोग को 3 बच्चों का ऐसा एक डेथ का सिनेरियो देखना जरूरी है? या फिर जो कवच का सिस्टम है वो कहीं पे लागू नहीं हुआ है, तो ये मीडिया को शायद वो एक्सीडेंट से पहले बताना चाहिए था हाँ, कि यहाँ yes, पे वो लागू नहीं बिल्कुल है, सही यहाँ पे बात. हो सकता है. तो दैट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट मीडिया. लेकिन क्या एक्सीडेंट होने Yes, के sir, बाद I या very फिर agree बच्चों with की you. डेथ के बाद वो दिखाएंगे वो उनका Yes, दिखाना, आई डोंट थिंक हमें दिस इज preventive अ measures लेना But ट्रांसपेरेंसी है. और Akash, the हमें issue preventive measures लेना है. is with the municipality and the government, right? So they have to provide the facilities. Then comes the no, issue of definitely sir, reporting. definitely like it is the issue of municipality, but it also come under the coverage of media. Like अगर म्यूनिसिपालिटी में कुछ भी खराब हो रहा है तो सर उसको भी हमारे मीडिया को कवर करना चाहिए. लाइक जब सर कोई स्कीम लागू होता है मीडिया तो बहुत अच्छे से आके बता देती है कि हाँ हमारे देश ने, हमारे मोदी जी ने यहाँ पे ये स्कीम लागू किया है, कवच सिस्टम पूरे देश में लागू कर दिया है, जबकि रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है. तो सर जब अगर वो ये बता रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा चीज लागू किया तो उनको ये भी दिखाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये चीज लागू हो रहा है, यहाँ पे लैकिंग हो रहा है. ये लास्ट ईयर जो स्कीम लागू हुआ तो ग्राउंड लेवल पे आज उनका रियलिटी क्या है? लाइक सर देयर आर सम मिड डे मील स्कीम्स, ऑल द स्टफ, लाइक बहुत सारी चीजें जो सरकारी स्कूल के लिए बहुत सारी चीजें हमारे गवर्नमेंट को ऊपर की तरफ से ऑर्डर आती है. लेकिन स्कूल रियलिटी पे सर लाइक हम मतलब गांव के स्कूल में अगर जाके देखें वो वहाँ का हालत बहुत खराब होता है. तो उसका कवरेज भी मीडिया का ये है. इसके लिए मतलब ये नहीं सर कि अब कल हो के सर कोई अगर बच्चा अगर अब देखिए, खाते जैसे कि हुए हमारा कोई बजट पॉइजनस लागू फूड से हुआ, मर जैसे जाता कि है हमारा तब जाके बजट, मीडिया के कवर करेगी. हाँ, तो मैं सर भी अब कुछ जो हमारा कुछ बजट टाइम पहले 2025 के लिए लागू हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट लागू किया. अब वो जो बजट में चीजें बताई गई हैं कि इतना इतना पैसा यहाँ लगेगा, अब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उन्होंने बजट बनाया उसका पैसा लगा कि नहीं लगा, हमें ये कैसे पता चलेगा? How we get to see Definitely. that? That's what I was हाँ, asking, sir. और कुछ टाइम पहले अगर आप लोगों का ध्यान ले चलो तो एक न्यूज बहुत र्यूमर मीडिया ने फैलाया था जब नोटबंदी का टाइम आया था कि नोट में अब चिप लगी है 2000 के नोट में, जिससे हम हाँ, हैक कर yes. लेंगे कि कहाँ जो है पैसा छुपा हुआ है और कितनी दूर से. बट हाँ, ऐसा रियलिटी में हम लोगों के पास जब हाँ, नोट आया ऐसे तो देखा रियलिटी में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं भी था. नहीं था. मिस तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत पकड़ाई गई थी. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाई गई थी. तो इस टाइप की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मुझे लगता है लिमिट भी करना चाहिए. फ्रीडम तो जरूरी है ही आजकल साथ में. एआई, इतने भी फेक आजकल फोटोज बनाए जा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, एआई का यूज करते हैं, जिससे कोई भी दो लोग आपस में खड़े हो सकते हैं. जिसलिए आजकल इस तरह की न्यूज भी फैलाई गई थी कि मोदी जी और जो जर्मनी के चांसलर थी एंजेला मर्केल, तो उन दोनों के भी कपल एक तरह से फोटो दिखाई गई थी एज अ कपल. दिस इज द डीप फेक वीडियो. तो इस तरह के न्यूज भी मीडिया दिखा सकते हैं. वी कैन नॉट से दैट.
I Like think they are the common man. only running for that TRP, sir. Like जो उनका rating होता है TRP, they are just making they are just yes. making money. They are not any the fourth pillar of constitution. They are just a business institute. वो बस पैसा बनाना जानते हैं. They are only running for TRP. There are only some medias which are genuinely covering the real one news. newspaper, The Hindu. Only the one newspaper, The Hindu, is showing transparent news in his all the editions. Definitely, sir. Also editorial page also. All the media houses are not a media anymore. They are not a transparent anymore. They are just a business model till now. Like they are either running by government itself, or they are running by some big institute like Ambani, or I don't want to mention name, but yeah, sir, they are running by some the big institutes only. I think I think we should not generalize all the media. We should say most of them are like this, but some That's medias that's are what doing I their was job saying, sir. Like correctly. if I left some name, otherwise the most of the like more than 80 to 90% are somewhat, sir, politically or somewhat business oriented to some specific houses. I think आकाश सर मुझे लगता we है should सबको make बोलने दीजिए aware थोड़ा the थोड़ा. people about that whatever they are showing, it is not right. The people should not follow them blindly. That whatever they are showing, it is right. We should make the people aware that whatever you are seeing on the like WhatsApp media, on the Instagram post, on the news channels, it is not always right. So we should make awareness among people, among the village people, especially because in the literate people can judge what is right, what is wrong, but the people who don't have the basic education, that can't understand Definitely, sir. what they are showing and what is the right, what is wrong. So also Yes. I want to add one more point, that media also sometimes try to polarize the society. So we have seen in the case of during construction of Ram Mandir, they always tried to make this a issue between Hindu and Muslim, which was not the Hmm. case. Okay, guys, I think it had been a long discussion, right? And you guys really enjoyed it. Was it so? You were participating like anything. है ना? Yes. That there was no time barrier, nothing. Modi government, Godi government, पता नहीं क्या शुरू हो गए तुम लोग. Controversial topics भी नहीं करते हैं. And I didn't stop you deliberately because this was the first time I think in number of GDs जब आप लोग vocals time इतना open up हुए हो. And you know, like one thing which I would say about जब starting की गई, जैसे आकाश ने की या कुलदीप ने points दिए और even योगेश ने point दिए, वो इतने लंबे लंबे point दे रहे थे. But जब आप actual discussion कर रहे थे, आप लंबे नहीं दे रहे थे. आप शॉर्टर दे रहे थे. दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टीच यू. इन दैट केस पहले हो रहे थे आप चार चार चीजें इकट्ठी बोल रहे थे, बट जब आना शुरू हुआ डिस्कशन पे, आपने एक एक पॉइंट को उठा के डिस्कस करना शुरू किया. दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न कि आपको लंबे एक्सटेंडेड पॉइंट नहीं देने होते. और आकाश, मुझे लगता हर बार मैंने टोका होगा, राइट? इलोंगेटेड कंटेंट नहीं देना, इलोंगेटेड कंटेंट नहीं देना. और आकाश को इंट्रोडक्शन में शौक है इलोंगेटेड कंटेंट देने का, है ना? कितनी बजे देना है आकाश लंबा कंटेंट, बताओ? ज्यादा हो जाता है वो एक्स्ट्रा, ठीक है? इतना लंबा नहीं देना. बाद में बहुत अच्छा फ्लो हो गया आपका, यू वर डूइंग गुड इन योर फ्लो, बट स्टार्टिंग इंट्रो वाज वेरी बैड. ठीक है? स्टार्टिंग लाइंस ठीक है, बीच में ठीक है, इंट्रोडक्शन नहीं ठीक है. कुलदीप के पॉइंट्स अच्छे थे. योगेश, जब आपने स्टार्ट कर दिया है ना, अंबानी की शादी भी डाल दी, J&K का भी डाल दिया, इकट्ठा डाल दिया. आपको लगता है जब डिस्कशन करते हो, बाद में जब डिस्कशन करते एक टाइम पे एक टारगेट कर रहे थे कि दो दो चीजें टारगेट कर रहे थे? Yes, ma'am. नहीं ना? One एक minute. टाइम पे एक चीज. क्या आप ये बोल सकते हो कि दैट वी आर लाइक देयर आर सम, अब जैसे आती है न्यूज आती है, ऐश्वर्या राय को मधुमक्खी ने काटा, दिस इज अ हेडलाइन. नाउ you understand what is they trying to showcase you. वो आधी न्यूज से देते हैं because they want more of the TRP on there. आजकल मीडिया को क्या हो गया, TRP आए. What I wanted to showcase from Mumbai Diaries was that the TRP is raised. That is the most important thing कि किस चैनल को कितने व्यूज मिले हैं. उस चक्कर में वो कोई भी न्यूज ऐसे शॉर्ट करके दिखाना शुरू कर देते हैं, राइट? यही चीज होती है. उसी चीज को आपको लर्न करना है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जब, लेकिन शशांक वो पॉइंट्स में मत जाओ, मोदी गवर्नमेंट, गोदी गवर्नमेंट, कुछ ऐसा ये आ गया, उसका ये चल रहा है. हमने वैसे पॉइंट्स नहीं बोलने जो कंट्रोवर्शियल रेज करते हैं. कंट्रोवर्सी रेज करें, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? और ये इस टॉपिक के लिए नहीं है, मीडिया के टॉपिक के लिए. इट इज फॉर एनी टॉपिक अंडर द स्काई. व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर सच टॉपिक्स, जब मैं तुम्हें बोलती हूँ नाम मत लो किसी चीज का, जैसे होता है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट प्ले, वर्क मैंने कराया था एक दिन, ठीक है? उसमें बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया, व्हाट द स्टूडेंट स्टार्टेड कि आई थिंक मेसी की बात होनी शुरू हो गई, या पता नहीं किसका, आई डोंट रिमेंबर इट आउट.
वो तो मैम उसका हार्ड वर्क नहीं है, उसका लक आ गया, उसने स्मार्ट वर्क ही किया, उसने आज तक हार्ड वर्क ही नहीं किया। मतलब हाउ कैन यू पुट सम थिंग्स टू दैट प्लेयर? अंडरस्टूड? हम किसी प्लेयर को नहीं बोल सकते कि यार उसने हार्ड वर्क नहीं किया, वो उसका स्मार्ट वर्क है, चाहे आप उसको पॉजिटिव में बोल रहे हो, बट वो नेगेटिव काउंट होता है। उसी तरह से आप किसी को ये नहीं बोल सकते ना, अब विराट कोहली को बोलो मैम इसने तो कभी हार्ड वर्क ही नहीं किया था, इसने तो स्मार्ट वर्क ही किया है, स्मार्टनेस ही है, सिर्फ वर्ल्ड कप के फाइनल्स में खेलता है, बाकी दिन टाइम तो ये आउट होके रहता है। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब तुम लोग ये एक्चुअल में पॉइंट्स, इसका मतलब मेन टीचिंग ये है इन पॉइंट्स से कि प्लीज अन दैट इज नेसेसरी नहीं बोलूंगी मैं, बट कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स को एलिमिनेट करो, ठीक है? आरित्रा का भी पॉइंट्स अच्छे थे, पॉइंट्स सबके अच्छे थे, आई डेंट हैव अ क्वालिटी कंसर्न फ्रॉम एनीवन, क्वालिटी कंसर्न नहीं था। अमन थोड़ा और अभी थोड़ा हेसिटेट सा लगा मुझे, मैम ठीक है? मेरा मेरा पहला दिन था मैम जीडी का। हाँ मतलब शशांक का भी पहला लगा मुझे, बट वो पूरा उसमें वो था कि इंडल्ज था, ठीक है? तो वो चीजें मतलब समझ लो डिफरेंस कि, बट शशांक के पॉइंटर्स चलो कंटेंट वाइज नहीं मैं इतना अच्छा कहूंगी, बट इट वाज गुड। आकाश, कुलदीप, योगेश, ऑल वर गोइंग गुड, ठीक है? सिर्फ तुम्हारे नेगेटिव्स मैंने तुम्हें बता दी, तुम इन पे वर्क कर लो। तुम तीनों के कंटेंट्स ठीक है। अरित्रा इज अगेन अप एंड डाउन, अरित्रा बीच में जब करता है बहुत अच्छा करता है, नहीं तो ये रुक जाता है, ठीक है? जैसे मैं नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए, सॉरी, मेरा नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट सिर्फ मुझे ये लगा जैसे अभी आप थोड़ा इनफॉर्मल, जैसे द वे यू स्पीक, द वे यू स्पीक इज द लाइक आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये चीजें थोड़ी इनफॉर्मल सी लगती है, ठीक है? जैसे बाकी बोल रहे थे, योगेश के लिटरेरी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कुलदीप का भी अच्छा है, आकाश की भी बहुत अच्छी है, आकाश की पार्टिसिपेशन कंटेंट वाइज बहुत पिन पॉइंटेड होता है, बट जब एक्स्ट्रा पे ज्यादा लंबा हो जाता है वो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है आकाश। क्लियर? आउट ऑफ ट्रैक का भी मतलब समझो आकाश, इट इज वेरी गोइंग टू बी बेटर फॉर यू बिकॉज आपकी पार्टिसिपेशन बहुत एप्ट होती है, आपका कंटेंट एप्ट होता है। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने आपको बहुत बार बोला इंट्रोडक्टरी पर्सन का क्या काम होता है, चैनलाइज करना कि मेरी टीम कैसे जीडी को कैरी करेगी। आपका काम है एक इंट्रोड्यूस करना कि भाई आज का ये टॉपिक है, हमारे पास दो साइड्स हैं, या तो मीडिया की हम पॉजिटिव की लिमिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग आप जो होगा एक न्यूट्रल बंदा चलो, जैसे कंक्लूजन वाले को मैं क्या बोलती हूँ, न्यूट्रल चलो ना, उस तरह से इंट्रोडक्टरी वाला एक तरह का ये बोलोगे कि आई थिंक दैट मीडिया शुड बी गिवन द फ्रीडम बट इन सर्टेन लिमिट्स, और मीडिया शुड नॉट बी गिवन द फ्रीडम बट उसका कुछ ऑपोजिट आ रहा, ठीक है? मतलब हमने क्या कर दिया, फ्रीडम भी दे दिया और उनको लिमिट्स भी बता दिया, दैट इट शुड बी इंफॉर्मेशन नॉट मिस इंफॉर्मेशन, इट शुड बी ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन नॉट rumors being spreaded out, not unnecessary baggage on the folder. Now I would like my team to participate in all the directions as what can be the limit we can impose on media, what are the necessary points, what media is working for us and how we can improve. अब ये तीनों चीजें क्या जरूरत थी बोलने की आकाश, थी ना इंपॉर्टेंट उस टाइम पे? जब आप टीम के लीडर बनते हो, इंट्रोडक्टरी पर्सन क्या होता है, एक तरह का लीड कर रहा है। अगर आप लीड कर रहे हो टीम को, आपको बताना पड़ेगा भाई ये भी, उससे आपकी इंट्रोडक्शन की अच्छी वो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अगर आप सिंपल बोलते रहोगे कि यहाँ पे फोर्थ पिलर, बहुत अच्छा पॉइंट स्टार्ट किया था, आप बोल सकते थे स्टार्ट पे, वी ऑल नो मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज अर्नड इट्स स्टेटस, बट रिसेंटली वी हैव सीन दैट मीडिया हैज lost that you can say the level because of the kind of misinformation which is being spread, and that is a concern for all of us. I would like my team to discuss it out in a good direction where they can put their valuable points that should media be imposed on certain limits and what should be those limits. If not, then how can we come up from this situation? So now I would like my team to participate and I open the house for discussion. ना लंबा हुआ ना छोटा हुआ, पॉइंट भी दिया। अब समझ आई आकाश? क्लियर है? और ये गलती कब से कर रहे हो? थर्ड टाइम होगा सर। हाँ थर्ड टाइम हो गया, तो सोच लो कि मैम कितनी। एक्चुअली मतलब पता नहीं चलता कि इंट्रो में हाँ कितना आपका मेन पता क्या कंसर्न है, में जाना है, क्यों मुझे लगता है मतलब अपने आप को रोकू कहाँ पे, क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत होता एग्जैक्टली है। मैम। आकाश का ये है, उसके पास ना कंटेंट बहुत होता है और बहुत अच्छा कंटेंट है, देयर नथिंग रॉन्ग कंटेंट। उसको होता है मैं ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, जैसे, पर ये नहीं होता जब हमें कोई चीज आती है, इसका मतलब ये नहीं कि बता दे उस टाइम पे। जैसे होता है ना किसी का बर्थडे है तो गिफ्ट आए हैं, तो वो है कि हमें उस टाइम पे दे दे चाहे बर्थडे आने में 4 दिन पड़े हैं, क्योंकि वो अंदर से वो नहीं हो रही है कि यार कि उसको मैं वेट नहीं करवा रहा। दैट इज इम्पेशंस इन आकाश ऑल्सो, ठीक है? वो लर्न करो ट्रेड। मैं कंक्लूजन सुनूंगी अभी योगेश का। योगेश प्लीज गो अहेड विद द कंक्लूजन। Thank you everyone for your valuable, insightful thoughts. We have discussed the many points about the media, both the positive and negative impacts. We have discussed
points like about the politics, about the education, about the village issues, and many more. Like the Kuldeep has given the example of the accident of in Delhi, and Shashank sir has given the points about the good points of the media, like they are showing the Chandrayaan and the budget informations, and they are I think we have discussed all the points, and I think we come on the conclusion that there should be a controlled uh, regulations on the media so that they can show the right and the authentic information to us. And once again, I would like to thank you everyone for your valuable valuable thoughts, and thank you. अब जैसे ये वैल्यूएबल थॉट्स, अटकना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब कंक्लूजन आपने स्टार्टिंग में पकड़ लिया तो कंक्लूजन की लाइंस लिखनी शुरू कर दो उसी टाइम पे साथ साथ में, ठीक है। मैम हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जो आप नहीं, सही नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर यू टेक्निकल कंफर्टेबल। इंग्लिश में संभाल लूंगा, इसमें हिंदी में ही बोलूंगा। हाँ, बट शशांक मेक श्योर आपकी हिंदी कई बार इनफॉर्मल हो रही है बीच में, ठीक है, ठीक उसको है। संभालने की कोशिश फॉर्मल करूंगा। नहीं होना, अभी प्रैक्टिस करो, अभी 2-3 दिन, अभी फर्स्ट है तो फर्स्ट पे कोई वो नहीं है। योगेश, कुलदीप, आकाश, ऑल गोइंग गुड। व्हाटएवर द फीडबैक्स आई टोल्ड यू, लंबा मत करो कुलदीप, इट्स फाइन, आई एम ओके विद इट। मैम जो बीच में डेटा दे रहे थे कि इंडिया की रैंकिंग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 160 है 180 कंट्रीज में, प्रेस किस आर्टिकल के अंतर्गत काम करता है? प्रेस आर्टिकल नंबर 19 इन फंडामेंटल 19 राइट्स। अगर याद है, आर्टिकल 19 ए क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ मीडिया ना, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ मीडिया, ये तब बोलो जब आता है, राइट। आर्टिकल 19 ए का पार्ट 1 है ये, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अलग है, उसमें मीडिया का एक सेक्शन आता है, पार्ट आता है, वो बोलता है जो मर्जी करो। बट वही चीज है, जब आप बहुत श्योर हो आर्टिकल्स के, अदरवाइज वहीं पे वो क्रॉस हो जाता है। आप लोग को मैंने इसलिए इस चीजों के पॉइंट नहीं किया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको 19 बोला और आपने वो पकड़ा, ठीक है, कोई रॉन्ग नहीं है। टेररिज्म को आपने पकड़ा, दैट्स गुड। ये चीजों में मेन है कि मीडिया जब टॉपिक आता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं आपको, बेस्ट ऑफ द कंटेंट जाते हैं हमेशा। मीडिया है तो ट्रांसपेरेंसी है बहुत चीजों में, मीडिया है तो हमें क्या आ रहा है इनपुट, जैसे कोई रिजल्ट्स है या किसी को, आजकल हम मीडिया की वजह से बहुत लोगों को क्या करते हैं, फेम भी पहुंचा देते हैं, दैट्स ट्रू, राइट। वी हेल्प टू गिव अपॉर्चुनिटीज आल्सो टू पीपल। बट मीडिया है तो क्या है, टेररिज्म है, मीडिया है तो मिस इन्फॉर्मेशन है, मीडिया है तो डाटा की मैनिपुलेशन है, मीडिया है तो फेक न्यूज है। तो ये सारी चीजें भी तो मीडिया के कारण आ जाती हैं, ठीक है। मीडिया है तो नए आइडियाज भी बन रहे हैं हमारे। कोई अब कई ध्रुव राठी का मेंशन किया था, राइट। ध्रुव राठी का जब मेंशन हुआ तो उसमें क्या चीज आई है, याद है आपको? उसमें आया कि वो एक हमें सोचने में मजबूर करता है कि वो प्रॉपर एंटी मोदी गवर्नमेंट है, राइट, ही इज अगेंस्ट इट। और अब आई वुड से इट आउट, जो न्यूट्रल्स है, ठीक है, आई एम अ न्यूट्रल पर्सन, आई एम नॉट इन द फेवर, आई एम नॉट इन द अगेंस्ट। ही ट्राई टू से सर्टेन थिंग्स दैट वी मेक, हम सोचने पे मजबूर होते हैं, वी ट्राई टू डू क्रिटिकल थिंकिंग दैट इज ही रियली सेइंग राइट और इज ही रियली सेइंग रॉन्ग, है ना। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये न्यू आइडियाज एंड थॉट्स, ये कौन डेवलप करवा रहा है? क्लियर आ गया? तो इससे हम मीडिया हमें सोचने पे मजबूर भी करता है। बहुत कम चैनल्स हैं ना, दिस इज समथिंग कंट्रोवर्शियल, वी शुड नॉट पॉइंट इट आउट। बहुत कम चैनल्स हैं जो एक्चुअल में ट्रुथ शोकेस करते हैं। जैसे वो आ गया बीच में, तुमने पॉइंट दे दिया, मीडिया भी खरीदी हुई है ना, बट वो सच्चाई भी है, बट वहां पे तुम्हें बोलना थोड़ा, क्योंकि देखो द वन हु इज जजिंग यू आउट, आपको हमेशा वैसे देखना होता है, एक एक पर्सन को एक एक बंदा एम्फसाइज कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। सपोज करो मैं ट्रू मोदी भक्त हूँ, मैं अगर बोलोगे अगेंस्ट तो मैं तो उसमें एंटी कर दूंगी, तो क्या हो गया, काउंटर हो गया ना। तो तुम ऐसे बोलो दैट सम पीपल आर इन द ओपिनियन ऑफ दिस एंड यस दैट्स देयर माइंडसेट। हम ऐसा पॉइंट कि हमने पॉइंट भी रखा बट हमने एग्जैक्ट नहीं बोला, ये गेम प्ले होती है, मैनिपुलेटिव होता है, समझ आया? ठीक है, थोड़ा वर्क करो। इट वाज अ गुड पार्टिसिपेशन, आई लाइक द पार्टिसिपेशन व्हिच यू डिड, आई वांट, बट कल को मैं एक फीमेल का टॉपिक दूंगी, वुमेन का, उसमें भी पार्टिसिपेशन इतनी ही हो जितनी मीडिया पे लड़कों से बुलवा लो, क्रिकेट पे बुलवा लो, ये तो नहीं होना चाहिए, बाकी टॉपिक्स पे भी होना चाहिए, ठीक है। चलो, we'll go ahead with other topics tomorrow at the same time. Okay? Chalo, all the best guys. We'll meet tomorrow. Take care. Bye-bye.